اے کار سازے دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا، تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ آج کی اس بزم میں رونق افروز ہمارے معزز مہمانان، پیرنٹس، ہیڈ مسٹریس صاحبہ، معزز معلمات اور عزیزی طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیشنل گرلز چائلڈ ڈے کے موقع پر ایک بامقصد تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام مہمانان کا خیر مقدم ہے۔ یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں۔ یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے گل، ہر خشک و تر میں تو بسا، ہر کوئی ہے تیرا گدا۔ ہر خشک و تر میں تو بسا، ہر کوئی ہے تیرا گدا۔ میری ابتدا میری انتہا، تیرے نام سے تیرے نام سے۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھانا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اور پہاڑوں کو اس کی مینکھیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا، اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ کہا خدائے بزرگ و برتر نے۔ سامعین، ہندوستان میں ہر سال 24 جنوری کو لڑکیوں کا قومی دن یعنی نیشنل گرلز چائلڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہندوستان میں لڑکیوں کی خود مختاری، تعلیم، صحت، ان میں شعور اجاگر کرنے اور ان کے حقوق کے لیے منایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملک میں کم سنی کی شادی قابل سزا جرم ہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمتوں، پارلیمانی اور مقامی نشستوں پر ایک تہائی تحفظ خواتین کے لیے ہے۔ نیشنل گرل چائلڈ ڈے کے ذریعے یہ پیغام عام کرنا مقصد ہے کہ ہر لڑکی اہم اور خاص ہے، اور انہیں بہتر سہولیات اور تحفظ فراہم کرنا سماج کی ذمہ داری ہے۔ تانیسی لب و لہجہ رکھنے والی شاعرہ سعدیہ سراج کہتی ہیں، آج کمزور کی طاقت پہ بھی کچھ بات کرو، آج کمزور کی طاقت پہ بھی کچھ بات کرو، بیٹی زینب کی حفاظت پہ بھی کچھ بات کرو۔ مجھ سے ہر دور میں خدمت کا تقاضا ہی کیا، مجھ سے ہر دور میں خدمت کا تقاضا ہی کیا، تم پہ لازم ہے وراثت پہ بھی کچھ بات کرو۔ سحر انسانیت کا ہے تقاضا دہر فانی میں، سحر انسانیت کا ہے تقاضا دہر فانی میں، کسی کے کام آ جائے تو اپنی زندگی دے دوں۔ ایک ایسی ہی ڈاکٹر آج ہمارے درمیان اس تقریب میں تشریف فرما ہے، محترمہ ڈاکٹر تسنیم نازنین روحے صاحبہ، اور تقریباً 11 سالوں سے طبی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ انتہائی فعال، مخلص، ہمدرد، محنتی اور اپنے پیشے کے تئیں دیانتدار ہیں۔ عہدے کا پیش کرنے کے پیچھے ہمارے اسکول کا ایک خاص مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے صفائی مہم کی شروعات کی، ساتھ ہی ساتھ ماحول بچاؤ ہمارا اہم مقصد ہے، اس لیے ہم پودے لگانے کی شروعات کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کے اغراض و مقاصد پیش کرنے کے لیے میں شیخ جویریہ ماہر محمد مظفر کو آواز
हर साल भारत में 24 जनवरी को कौमी यौम दुख्तर यानी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत भारत में सन 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर के ज़रिए हुई। सालों से हिंदुस्तानी समाज में लड़कों को फ़ौक़ियत दी जाती है। वक्त के साथ हालात में तब्दीली ज़रूर आई, मगर समाज से फरसुदा ख़यालात और रस्म व रिवाज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जदीद भारत में लड़कियों की अहमियत और फ़ौक़ियत को उजागर करने के लिए इस दिन का इनेकाद किया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद भी समाज में ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियत से लोगों को वाकिफ़ कराना है और साथ ही साथ औरतों के हुकूक़ के मुतालिक बेदारी पैदा करना, उनकी तालीम और उनकी सेहत और मुनासिब ग़िज़ा की फ़राहमी की अहमियत को उजागर करना है। इसी मकसद के तहत आज हमारे स्कूल मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल में कौमी यौम दुख्तरान यानी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे का इनेकाद किया गया है, ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम समाज में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में शामिल हो सके। साथ ही आज का हमारा ये प्रोग्राम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। इसके ज़रिए एक सफाई मुहिम की शुरुआत की गई है, ताकि एक साफ़ सुथरे माहौल में मुल्क और समाज का मुस्तकबिल परवान। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। तुम क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ो पढ़ो, तुम्हें तो आगे जाना है, लड़के जो हो। और तुम क्या कर रही हो? छोड़ो ये पढ़ाई, पढ़ लिख कर क्या करना है, चूल्हा ही तो संभालना है। रेत की जंजीरें खा गई जंग, रेत की जंजीरें खा गई जंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हर्रा आवाज दबंग, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ। ये क्या कर दिया? एक काम ढंग से नहीं होता, जाहिल कहीं की। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मैं जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद
अपने जैसे इंसान से। कब ये मर्तबत दोगे, कब बुरा न मानोगे, मेरे साथ चलने पे, मेरे शख्स होने पे, मेरे ख्वाब बुनने पे, सोचने पे, हंसने पे। वो सदी जो बीती है वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी जो आई है ये सदी हमारी है। आप आए हैं दबे पाँव भरी महफिल में, जैसे गुलशन में बहारों के कदम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की मुबारकबाद देता हूँ सभी ख़वातीन और बच्चियों को। कोरोना दौर के कोविड-19 का जो ये कोरोना का जो दौर चला है, इस दौर में बहुत सारी बातें हमने सीखी। इसमें से जो सबसे अहम और बुनियादी बात ये थी कि अगर हमको इस तरह की किसी भी बीमारी से बचना है तो हमको साफ़ सफाई का ख्याल रखना होगा, और जितना हम अपने आप को और अपने एतराफ़ के माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना हम बीमारियों से बचेंगे। ये हमने कोरोना के इस दौर में देखा है कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और साफ़ सुथरा रहना, इससे जो है वो बीमारी से बचा जा सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यानी कि मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा जवेरिया काजी की रहनुमाई में स्कूल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसको माइलस्टोन नाम दिया गया है। एक तालाब है दरगाह दीवान शाह, जो दीवान शाह दरगाह है, जिस वहाँ से जो लोग वाकिफ़ हो गए उस जगह से, वहाँ पर एक तालाब है। तालाब काफ़ी बड़ा है, उसकी जो तारीख़ है वो उससे भी बड़ी है। एक वक्त था जब वहाँ पर जो है आम के बागात लगे हुए थे, लेकिन अब उस तालाब की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है। मैंने अपने खुद कैमरे से कुछ फ़ोटो, मोबाइल कैमरे से कुछ फ़ोटो उसके खींचे थे। ये बच्ची के बैनर पर बने हुए हैं, नीचे जो फ़ोटो है उस बच्ची के बैनर पर बनी हुई है। चारों तरफ कचरा फेंका हुआ है और उसको डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हैं आसपास, और पानी जो है उसको गंदा किया जा रहा है, जबकि वो तालाब इतना बड़ा है और कुदरत का एक तोहफ़ा है वो हमारे लिए। तालाब का इस्तेमाल जो है वो गांव में जब तालाब बनाए जाते थे तो पूरे गांव की जो है हर तरह की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तालाब का इस्तेमाल किया जाता। ये तालाब जो है वहाँ मौजूद है, लेकिन उसका कोई ख़ासा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसको रोज़ बरोज़ गंदा किया जा रहा है। हमारी ये कोशिश है कि उस तालाब को साफ़ सुथरा किया जाए, उसके एतराफ़ में दरख्त लगाए जाए, उसके अंदर जो है कवल के फूल खिलाए जाए। तालाब के अंदर जो है वो अक्सर जो है जो तालाब होते हैं कुदरती तौर पर गांव में जो साफ़ सुथरे तालाब होते हैं उसमें कवल के फूल होते हैं जो उस पर तैर रहे होते हैं, जो उस पर काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और वो तालाब को साफ़ सुथरा भी रखते हैं। हमने एक तस्वीर जो है वो जो हमारी कोशिश है कि मुस्तकबिल में वो तालाब को जिस तरह दिखे, वो तस्वीर भी एक ऊपर बच्ची हुई बेटी के जो बच्ची है उसके पास दिख रही है कि किस तरह से तालाब पर जो है खूबसूरत फूल कवल के लगते हैं। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम वो काम कर रहे हैं, कवल के फूल लगाना, उसके एतराफ़ की जो है साफ़ सफाई, और उसके बाद वहाँ जो है एतराफ़ में दरख्त लगाना जिससे वहाँ छाँव होगी। अगर वो तालाब साफ़ सुथरा रहे तो उसका पानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, मी आपल्यासमोर एक कविता प्रस्तुत करत आहे। देवा सांग न मला मुलगी का बनवले, बिना बुडाचे खेळणे बनवले, दिले अमूल्य सौंदर्य पण कावळाची मात्र शिकार बनवले। सांग न देवा मला मुलगी का बनवले, सुवासिनीचा मान दिला, सौसर्याचा वाण दिला, स्वाभिमानच तेवढे खेळणे बनवले,
सांग न देवा मला मुलगी का बनवले. मातृत्वाचे वरदान दिले, संसाराचे धनदान दिले, पण तरीही लाटाखालच वन बनवले. सांग न देवा मला मुलगी का बनवले. वात्सल्याची छाया दिली, प्रेमाची काया दिली, अभिमानीची मात्र पयांची चाड बनवले. सांग न देवा मला मुलगी का बनवले. लक्ष्मीचे स्थान दिले, घर सांभाळांचे ज्ञान दिले, पण जगण्यासाठी काटेरी रान बनवले. सांग न देवा मला मुलगी का बनवले. कुणाचे तरी स्वप्न बनवले, अमूल्य असे रत्न बनवले, माणसाची ढाल बनवले, माझ्या अस्तित्वाला शून्य मोल बनवले. सांग न देवा मला मुलगी का बनवले. सांग न देवा मला मुलगी का बनवले. खुदाफिज. मैं हमारे मेहमानान हेड मिस्ट्रेस साहिबा और वालिदैन से दरख्वास्त करूँगी कि आगे तशरीफ़ लाएं और बहुत मुकम्मल अभी अभी जिन्होंने मुझे एजाज़ से बख्शा है वो 10 क्लास में हमारे उर्दू के टीचर थे. मुझे बेहद मुसरत हो रही है. मैं तमाम तलबा से दरख्वास्त करूँगी कि मेरे फेवरेट शबाना मैडम के लिए तालियां बजाएं. और प्यारे बच्चों से मैं दरख्वास्त करूँगी कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल किया करें और 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें. तो आज इस जगह पे आप भी खड़े हो सकते हैं. आज ये समझ में बात बच्चों को आवाज़ नहीं निकल रही है. और इसी के साथ साथ में कुरान की तिलावत कीजिए, नमाज भी पढ़िए और वालिदैन का ख्याल रखिए कि वालिदैन एक अनमोल नेमत है. जिसके पास नहीं है उससे सबक हासिल कीजिए. और इतना बोलते हुए मैं यहाँ पे तमाम टीचरों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इज़्ज़त बख्शी. अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. आमीन. शुक्रिया मैडम. आखिर में मैं इज़हार तशक्कुर के लिए आज की ये तकरीब कामयाबी के साथ अमल में आई. मैं इस मौके पर 2 चीज़ें से कहूँगा कि दीन इस्लाम ने औरत को, लड़कियों को ख़ास तौर से जो मकाम दिया है वो किसी मज़हब ने नहीं दिया. कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, उसकी अहमियत को उजागर किया है और ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि वजूदे ज़न से है कायनात में रहा. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को बाइस रहमत बताया है. एक वाक़या छोटा सा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे और पहले उनको बैठाते थे फिर अपने बैठते थे. आज हमारा मुआशरा और समाज देखिए लड़कियों और औरतों के ताल्लुक़ से कितना बिगड़ा हुआ है. इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम दीन से बहुत दूर हैं. जो हिदायत का ज़रिया था उसको हमने ताकों में सजा के रखा. हम उससे जो इबरत लेनी थी, जो नसीहत हासिल करनी थी, वो हासिल नहीं करते. मैं तमाम को इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ. और ये भी एक नुक्ता है कि ये जो तकरीब मुनक़िद हुई है हमारी स्कूल में, शाज़ो नादिर ही कहीं ये एहतमाम होगा इस तकरीब का. मैं बहुत ही वाज़े तौर पर ये कहता हूँ कि शाज़ो नादिर ही कहीं एहतमाम हुआ होगा. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी इज़्न से आज की ये तकरीब कामयाबी से हमकिनार हुई. और तमाम मेहमानान जो हमारे इस तकरीब में शरीक हुए उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बच्चों को, तालिबात को और असातिज़ा किराम को एक पैगाम दिया. हम उनके मशकूर हैं. और साथ ही साथ
اساتذہ کرام جنہوں نے انتھک کوشش کی، محنت کی، اور طالبات جنہوں نے حصہ لیا، اور تدریسی عملہ، غیر تدریسی عملہ جو اس تقریب کو کامیاب کرنے میں محنت کی، کوشش کی، لگے رہے اور آخر تک لگے رہے، ان تمام کا شکریہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو احسان کرتا ہے اس کا احسان سے بدلہ دیا جائے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی، ہماری عورتوں کی، لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کا ایک جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول معاشرے اور سماج میں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔